Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, where I do my best to teach you one problem of analysis and interpretation of financial statement. Obviously, अगर आप ऐसा हो, क्या बोल रहे सर? ओके, इसके पहले हमने, मुझे लगता है करीबन 7 या 8 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, जहाँ पे मैंने आपको अलग से वर्टिकल बैलेंस शीट मेरे पीछे है, सिंपल फॉर्म, और वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट मेरे उस तरफ है, वो भी सिंपल फॉर्म में पढ़ाया है। मैंने आपको अलग अलग पढ़ाया है। आज लेक्चर थोड़ा अलग क्यों रहेगा? क्योंकि आज हम फाइनल अकाउंट्स करेंगे। फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, बैलेंस शीट आएगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या, एडजस्टमेंट्स आएंगे। एडजस्टमेंट्स आएंगे तो दो इफेक्ट करने पड़ेंगे। तो आप बोलोगे सर बहुत बार किया है हमने फाइनल अकाउंट्स। डरो मत सर, हमको समझ में आ जाएगा। यस, आपने बहुत बार किया है, पर आपने हॉरिजॉन्टल किया है। मतलब क्या है? लेफ्ट राइट, डेबिट क्रेडिट, टू बाय। वर्टिकल करने में परेशानी क्या होती है, ये मैं आपको डेफिनेटली बताना आज चाहूँगा, और एक प्रॉब्लम के साथ में मैं वो एक्सप्लेन एंड सॉल्व डेफिनेटली करना चाहूँगा। जल्द से बता दूँ हमने आज तक क्या किया है। ये मेरे पीछे एक बैलेंस शीट है, काफ़ी लंबा बैलेंस शीट है, जो शेयर होल्डर्स फंड्स के साथ में शुरू होता है, जो बोरोड फंड्स, और उसके बाद में उसका टोटल मिलता है, उसके बाद में वो जाता है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, वो जाता है इन्वेस्टमेंट्स पे, और वो जाता है वर्किंग कैपिटल, जिसके अंदर आता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, ठीक मेरे पीछे दिए गए हैं। और इसके बाद हमने किया एक रेवेन्यू स्टेटमेंट, वो तो उससे और लंबा था। शुरू होता है सेल से, उसके बाद में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब फैक्ट्री का हिसाब किताब माइनस होता है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऑफिस का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, फाइनेंस का खर्चा, आपको आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर कहाँ पे भी जाके आपको NOE, मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, आपको आता है। फिर NPBT, NPAT, और उसके बाद में आपको लास्ट का आपका प्रॉफिट मिल जाता है। टुडे, आज जब ये क्वेश्चन जो आने वाला है हम सॉल्व करें, आपको ध्यान क्या रखना है कि पहले आपको सॉल्व करना है वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट, क्योंकि जब भी आपने फाइनल अकाउंट्स बनाया है, आई होप आपको इतना तो पता है कि आपने फाइनल अकाउंट्स जब भी बनाया है, पहले आपने ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ढूंढा है, फिर जाके बैलेंस शीट बनाई है, और फिर बैलेंस शीट उसको टोटल कर दिया है। तो आज भी कुछ इस तरह ही होगा। जब आप क्वेश्चन देखोगे
जो मेरे पीछे है, आप ये देख सकते हो। एक मिनट मैं थोड़ा उस तरफ चला जाता हूँ, आपको दिख जाएगा। TY-BCom का पुराना क्वेश्चन है, अक्टूबर 2004 का। गुड क्वेश्चन, क्योंकि द मोमेंट हम वर्टिकल बैलेंस शीट में रेवेन्यू स्टेटमेंट भी करते हैं, हम बैलेंस शीट भी करते हैं, तो सोल्यूशन बहुत लंबा हो जाता है। और बहुत बच्चे हैं जिन्हें, क्योंकि उन्होंने अलग अलग क्वेश्चंस ये किए नहीं है, तो उनको ये सॉल्व करने में तो डबल मुसीबत हो जाती है। माय रिक्वेस्ट कि पहले आप पुराने लेक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि नॉर्मली इस तरीके का क्वेश्चन का आने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता है इसके लिए। तो वो नॉर्मली या तो वर्टिकल बैलेंस शीट अलग से देते हैं या तो वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट अलग से देते हैं। तो भी प्रैक्टिस के लिए आज के लेक्चर में और आने वाले लेक्चर में मैं 2 सम तो आपको मिनिमम करा ही देता हूँ प्रैक्टिस। ये पूरा सम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ ज्योति लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। प्रिपेयर वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट, रेवेन्यू मतलब ट्रेडिंग P&L अकाउंट फॉर द ईयर फॉर द फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड अ वर्टिकल बैलेंस शीट। तो सीधी सी बात है, रेवेन्यू स्टेटमेंट भी आपको करना है, आपको बैलेंस शीट भी रेडी करना है। जो लिस्ट दिया है ना, ये पूरा लिस्ट, ये पूरे लिस्ट में डेबिट क्रेडिट, प्लीज नोट करना, ये जो रुपीज है ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। ओके हाँ, तो ये जो डेबिट क्रेडिट है इसमें या तो इनकम है, या तो एक्सपेंस है, या तो एसेट है, या तो लाइबिलिटी है। और एंड में एडजस्टमेंट्स दिए हैं 1 2 3। अभी 3 एडजस्टमेंट्स मतलब हर एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट आएगा। ओके देख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल किधर आता है? बैलेंस शीट में जाता है। शेयर कैपिटल की कैटेगरी में प्लांट एंड मशीनरी किधर आता है? बैलेंस शीट में आता है। फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट की कैटेगरी में, तो वैसे मैंने कोडिंग पहले दिया था। सेल्स क्या है? सेल्स होता है जी, उसका तो कोई कैटेगरी होता नहीं है, बराबर है। ओके नेक्स्ट परचेसेस, ये COGS में आता है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में। डेटर याद करना, आई थिंक मे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, बट ये एक करंट एसेट है, उसमें हम इसको क्विक करंट एसेट कहते हैं। क्रेडिटर ये करंट लाइबिलिटी है, क्विक जल्दी जल्दी हमको पैसे देने हैं। वेजेस भी आता है फैक्ट्री में, और ओपनिंग स्टॉक भी आता है फैक्ट्री, मतलब COGS। सैलरी ऑफिस का खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट सेलिंग का खर्चा है, टेलीफोन ऑफिस का खर्चा है। फर्नीचर खर्चा नहीं है, फर्नीचर एसेट है, टेंजिबल एसेट। इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट होता है, उसका कोई कैटेगरी नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, वेरी कंफ्यूजिंग, ये क्या है? देख, रिसीव्ड है तो इनकम है, इतनी बात तो समझ ले। अगर थोड़ी गड़बड़ी हो रही है तो 1 मिनट मैं थोड़ा पीछे घुमा देता हूँ। इंटरेस्ट रिसीव आपको किधर दिखता है? देखो ये जो आता है ना, नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर जस्ट मेरे बगल में है, वो जो आप कमाते हो इंटरेस्ट, ओके, ये आता है एज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्योंकि इंटरेस्ट आप नॉर्मली किस पे कमाओगे? आपने अगर किसी को लोन दिया, सोचो वो लोन पे आपको इंटरेस्ट आएगा। ये आप कोई बैंक नहीं हो कि आप हर दिन लोन देते रहते हो, तो ये आपका बिजनेस नहीं है लोन देना, तो इसके ऊपर का इंटरेस्ट, इसके लिए आपका क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सो द मार्किंग फॉर दिस इंटरेस्ट रिसीव्ड इज NOI। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये तो फर्नीचर आप हर दिन नहीं बेचते, तो ये भी जो नुकसान है ये हर दिन आपका बिजनेस का नुकसान नहीं है, इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। कमीशन, वेरी कंफ्यूजिंग सर, कमीशन के आगे पीछे कुछ बोला नहीं। देखो ये डेबिट में है, प्लीज याद रखना ये डेबिट में है, तो ये खर्चा है, तो ये कमीशन पेड है। पहली बात, पेड किसको पे किया? सेल्समैन को दिया होगा। क्यों दिया होगा? सेल्समैन सेलिंग करता है ना, तो ये इसके लिए जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस, ये कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस है? प्लीज याद रखना, इन अ क्वेश्चन जहां पे आपको बैलेंस शीट और P&L दोनों रेडी करना है, नॉर्मली ये P&L में आपको बोलता है रिजर्व एंड सरप्लस। हाँ और ना दोनों है। ना क्यों? हमको लिखना है P&L रिजर्व एंड सरप्लस में क्लोजिंग बैलेंस,
ये जो आपको दिया है थोड़ा और क्लियरली दिया जाना चाहिए था, ये है ओपनिंग बैलेंस, इसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो ये रिटेन्ड अर्निंग पीएनएल में, रेवेन्यू स्टेटमेंट में ये जाएगा एज अ ओपनिंग बैलेंस। अगेन मैं क्लैरिफाई कर देता हूं बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आप में से कुछ नहीं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, सर ये एग्जैक्टली कहाँ पे जाता है। देखिए यहाँ पे आता है ना एनपीएटी ऊपर, उसके नीचे आता है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस लास्ट ईयर का, मतलब ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग। फिर एंड में आएगा रिटेन्ड अर्निंग क्लोजिंग, मतलब पीएनएल क्लोजिंग, ये जाएगा बैलेंस शीट में। हमने ये दोनों साथ में नहीं बनाए ना, आज पीएनएल का आंसर हम पिकअप करेंगे और बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, क्योंकि अगर ना करें तो बैलेंस शीट टोटल होने वाला नहीं है। 5-10 मिनट दे दीजिए, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ में जरूर आ जाएगा। इंटरिम डिविडेंड ये एक अप्रोप्रिएशन होता है, कोई भी डिविडेंड आप शेयर होल्डर्स को दो, ओके, तो ये अप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में आता है। जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस है, कैश एट बैंक एंड बिल रिसीवेबल, ये दोनों कहाँ पर आते हैं, ये क्विक करंट एसेट है, तो बैलेंस शीट में आते हैं। ये तो हो गई ट्रायल बैलेंस की चर्चा। चलो हम मेहनत करेंगे, इसको हम ट्रांसफर करेंगे, बट ये एडजस्टमेंट्स आज कैसे सॉल्व करें। और एडजस्टमेंट्स के लिए ही बड़ा बवाल है, बिकॉज जब आप हॉरिजॉन्टल सॉल्व करते हो तो आपके पास ऑलरेडी पेजेस है, आप बोल सकते हो यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग में, फिर बैलेंस शीट में सेकेंड इफेक्ट। बट वर्टिकल में क्या होता है, आपको पहले रेवेन्यू स्टेटमेंट सॉल्व करना है एंड यू डोंट नो, आपको पता नहीं है हाउ लॉन्ग विल दैट रेवेन्यू स्टेटमेंट बी। एग्जाम्पल, ओके, लेट मी शो यू समथिंग। हाँ, कि एक रेवेन्यू स्टेटमेंट विल be something like this. Now I'm going to explain the adjustments to you, but you don't know how many lines and I can't even tell you, because sometimes it will be 1 page, sometimes it will be 2 page, and after that comes to an end, खत्म होने के बाद में then you are going to prepare a balance sheet, a vertical balance sheet that also may take 1 or 2 pages. So first effect तुमको करना है, second effect दिमाग में रखना है कि जब मैं बैलेंस शीट स्टार्ट करूं तब मुझे सेकेंड इफेक्ट देना है। लेट मी फर्स्ट शो यू कि ये एडजस्टमेंट्स कौन से हैं। देखो, पहले तो आपको स्टॉक ऑन 31 मार्च, ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। नाउ लेट मी शो यू कि क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअली आता किधर है, क्योंकि आपने किया है बट आपने अलग अलग किया है। मतलब अगर आप ऊपर देखो तो करंट एसेट्स में आता है क्लोजिंग स्टॉक, ऊपर ये एक बार है, ये एक बार, बट एट द सेम टाइम क्लोजिंग स्टॉक तो सीओजीएस में भी आता है। यस, अगर आप यहां पे ध्यान दो, क्लोजिंग स्टॉक मींस क्लोजिंग स्टॉक हैज 2 इफेक्ट्स। यस, आज तक आपने जितनी पढ़ाई की है, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा 2 बार आया है, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक बैलेंस शीट। तो ये भी सेम है, बट इट विल लुक डिफरेंट, कॉन्सेप्ट वही है, लुक डिफरेंट। तो ये तो हो गया क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट। लेट मी बिहाइंड मी शो इट टू यू। ओके, व्हाट डू आई मीन बाय दैट, हियर ये मैंने लिखा है, अगर आप लिख दोगे ना तो भी बेटर रहेगा कि पहले एडजस्टमेंट समझ लो कहाँ पे आते हैं। पहला तो आएगा सीओजीएस में, क्योंकि पहले हम स्टार्ट करेंगे रेवेन्यू स्टेटमेंट, फिर जाएगा नॉन क्विक करंट एसेट। दिस इज योर फर्स्ट रीजन ऑफ एडजस्टमेंट। इसके बाद what is your second reason for adjustment? Let's read. Make provision of 3 lakhs for income tax. Income tax हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, no problems, बता देता हूँ, ध्यान देना। So here less income tax, NPBT के बाद, NPBT के बाद ये एक बार है। And what is income tax? सरकार को हमको देना है पेएबल। तो अगर आप क्विक लाइबिलिटी में देखो, यहाँ पे दिखता है प्रोविजन फॉर टैक्स जस्ट अबाउट, यहाँ पे, ओके, ये अबाउट। तो इनकम टैक्स भी 2 बार आता है, तो किधर ये 2 बार आने वाला है, 1 बार 2 बार। अगेन शिफ्ट करता हूँ, देख लीजिए मैंने लिखा है, आप भी लिखिए, और आप जब भी कोई भी सम सॉल्व करो और आपको वो आता है, प्रीपेड आ सकता है, आउटस्टैंडिंग आ सकता है, तो जैसे आपने पहले सॉल्व किया था ना, प्रीपेड का मतलब क्या है
इंश्योरेंस अगर प्रीपेड है इंश्योरेंस से माइनस, और करंट एसेट में आपको लिखना पड़ेगा। अगर आउटस्टैंडिंग आता है वेजेस तो वेजेस में प्लस, मतलब जो नॉर्मल आपने एडजस्टमेंट्स आज तक फाइनल अकाउंट्स में किए हैं वही वर्टिकल स्टाइल में भी आ सकता है। हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स फर्स्ट टाइम आप कहाँ पे लिखोगे, बिकॉज अगर आप भूल गए व्हेन यू आर सॉल्विंग तो उसको रिपीट करना ना हाफ एन आवर का सम 1 घंटा ले लेगा, एग्जाम में उतना टाइम तो नहीं है ना। तो ये जो मैं टेबल बना रहा हूं आप भी वो टेबल बनाने की आदत डालो। हाँ, पहला आफ्टर एनपीबीटी है और दूसरा QCL है, तो ये मेरे आंखों के सामने है, ये फर्स्ट इफेक्ट है, ये सेकेंड इफेक्ट है। ओके, इसके बाद अगला एडजस्टमेंट क्या है देख लेते हैं। डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 20%। रेवेन्यू स्टेटमेंट में कहाँ पे आता है डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीनरी? अगेन फॉर्मेट बता देता हूं तो आपके लिए ना वो थोड़ा सिंपल हो जाता है अंडरस्टैंड करने में। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी कम्स इन COGS, दिस इज फर्स्ट इफेक्ट, एंड सेकेंड जहाँ पे आप प्लांट लिखते हो उससे माइनस करते हो, तो ये हो गए इसके 2 इफेक्ट। अगेन मेरे पीछे देख लीजिए कि प्लांट का फर्स्ट डेप्रीशिएशन आएगा COGS, सेकेंड आएगा प्लांट में से डिडक्शन जैसे आप नॉर्मली आज तक करते थे, और इसके बाद था फर्नीचर। अगेन फर्नीचर ऑफिस में आता है, ये प्लीज याद रखना। ओके, फर्नीचर कंप्यूटर हम लोग COGS में नहीं लिखते हैं, तो एक आएगा ऑफिस में, दूसरा फर्नीचर से सब्ट्रैक्ट। ये टेबल मेरे बगल में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेबल में जो एडजस्टमेंट्स है टेक्निकली 4 एडजस्टमेंट्स है, तो उसके 2 इफेक्ट आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इफेक्ट कब आएगा और सेकेंड इफेक्ट भूलना मत। ओके, ये तो था मेरा और आपका जो डिस्कशन कि भैया चलो डिस्कस तो हमने कर लिया है, अब सॉल्व करते हैं जी। ओके, तो दिस क्वेश्चन एक्सट्रीमली गुड क्वेश्चन बिकॉज वी आर डूइंग बोथ, वी आर डूइंग फाइनल अकाउंट्स बेसिकली, एंड फॉर फाइनल अकाउंट्स आई कैन इन एडवांस गिव यू एन आइडिया। देखो भाई, शुरुआत कुछ इस तरह होगी और अंत भी कुछ इस तरह होगी। ओके, शुरुआत कैसे होगी? ग्रॉस सेल से कुछ सेंटेंसेस बाद आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे आ जाओगे, आपको आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे जिसमें ऑफिस आएगा, सेलिंग आएगा और फाइनेंस आएगा। ये फाइनेंस के बाद में मैं बाद में बताऊंगा OPBI, OPAI, फिर आपको नॉन ऑपरेटिंग आएगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप माइनस करोगे और इनकम को प्लस, आपको आएगा NPBT, फिर NPAT। उसमें आप क्या करोगे, लास्ट ईयर का प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस ऐड करोगे, फिर आपको आएगा अप्रोप्रिएशन, एंड देन जो बचेगा वो होगा आपका करंट ईयर का प्रॉफिट। इससे आपका क्या बन जाएगा, रेवेन्यू स्टेटमेंट। बैलेंस शीट अलग होता है। हाँ, आइडिया दे देता हूं कि बैलेंस शीट किस तरह दिखता है, कुछ इस तरह। पहले आता है सोर्सेज ऑफ फंड्स, उसमें शेयर होल्डर्स फंड्स, अलग अलग नाम रहते हैं, ओनर्स फंड्स, प्रोप्राइटर्स फंड्स, नेटवर्थ, शेयर कैपिटल, रिजर्व, मिसलेनियस, और फिर आता है बोरोड फंड्स, लोन या ऐसा कुछ। इसके बाद आता है एप्लीकेशन, उसमें फिक्स्ड में टेंजिबल, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट्स, और फिर आता है वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल, एंड द वेरी एंड total fund employed 1 + 2 + 3, and at the very end the total fund raised and the total fund employed. So this is like a skeleton of the solution. अभी इसके अंदर हमको fill up करना है. So you have to not go as per the order of the question. Very 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 important. नहीं इसके हिसाब से मत जाना, तुम आपके solution के order के हिसाब से जाना. मतलब पहले सेल्स ढूंढ, हाँ तो है ना सेल्स ऊपर 37 लाख, ओके, तो पहले तो वो लिख ले, चलो पहले लिख लिया, बट सेल्स रिटर्न तो नहीं है, हाँ तो फिर उसको ब्लैंक रख, तो तेरा नेट सेल्स वही 37 लाख आएगा, ओके लिख ले। अभी तू स्टार्ट कर, अगेन ना मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। माई रिक्वेस्ट टू यू इज
थोड़ा टाइम निकालो, ये आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। अलग से अपना मार्किंग करना और विदाउट मी सॉल्विंग इट ऑन स्क्रीन आप सॉल्व करने की कोशिश करना। तो मैं यहाँ पे थोड़े फास्ट जा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपने आप आफ्टर यू हैव लिसन टू दिस एक्सप्लेनेशन आप सॉल्व करना। इसके बाद आता है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें क्या आता है, पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेसेस, फिर कैरेज इनवर्ड नहीं है, वेजेस, हाँ ये सब है। तो चलो हम लोग एक एक करके ये सब लिख देते हैं। तो तुमको क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक किधर गया, होना तो चाहिए, परचेसेस किधर गया, परचेस रिटर्न है तो वो माइनस कर लेना, वेजेस। हाँ, इसके बाद में क्या आता है, यू सी आपको क्वेश्चन को सी करना पड़ेगा कि सर इसके बाद में ऊपर तो मेरे को कोई COGS दिखता नहीं है, बराबर है, बट क्या आपको याद है कि आपके जो एडजस्टमेंट्स है ये दिखता है, क्लोजिंग स्टॉक का COGS, ये दिखता है डेप्रीसिएशन का COGS, तो ये आने हैं, बट ये तो एडजस्टमेंट्स है, तो एडजस्टमेंट तो कभी ना कभी आना चाहिए। सर ये फर्स्ट इफेक्ट है, सेकेंड इफेक्ट का क्या भाई मेरे, वो सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में है, वो जब बैलेंस शीट बनाएगी तब याद करेगी, अभी तू COGS का फर्स्ट इफेक्ट दे। ओके, तो पहले तो डेप्रीसिएशन आ जाएगा। चलो भाई मैंने वो लिख लिया आपके लिए, कितना आ गया 2,40,000, एंड जस्ट टू बी अ लिटिल बिट क्लियर मैंने वहाँ पे लिख दिया फर्स्ट इफेक्ट। इसके बाद में मैं क्लोजिंग स्टॉक लिख देता हूँ, इनफैक्ट वो भी फर्स्ट इफेक्ट है, माइनस हो गया। सो COGS का जो आंसर है आफ्टर यू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आपको और मुझको आता है 21,10,000। ये आप माइनस करो नेट सेल से आपको ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 15,90,000 लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसमें ABC, क्योंकि ABC हमको बाद में जाके प्लस करना है। अच्छा, तो पहले ऑफिस, पहले ऑफिस की खोजबीज कर लो। अच्छा, ऑफिस में क्या आता है, सैलरी है, ऑफिस में क्या आता है, टेलीफोन चार्जेस है, ऑफिस में और क्या आता है, देखो यहाँ पे तो दिखता नहीं है, बट जब आप डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर याद करो तो वो भी तो आता है। अच्छा, तो फर्नीचर है कितना, इसी डेप्रीसिएशन फर्नीचर 10%, तो अगर आप ऊपर देखो फर्नीचर इज 2 लाख, तो 2 लाख का 10% तो 20,000 आएगा। तो कैलकुलेशन कैलसी पे ऑब्वियसली आप कर सकते हो, बट यू लुक एट द क्वेश्चन एंड यू फर्स्ट डिसाइड क्या क्या आएगा, और कुछ भूलना मत। सैलरी आ गया, टेलीफोन चार्जेस, एंड स्पेशली ये डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर 2 लाख उसका 10%, तो ऑटोमेटिकली 20,000, तो ये तो टोटल हो गया। सेलिंग का क्या क्या आएगा, अगेन एंड अगेन क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन के ऑर्डर के हिसाब से नहीं जा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या आएगा भाई, एडवर्टाइजमेंट मुझको दिखता है, और थोड़ा समझाने के बाद कमीशन पे जो सेल्समैन को दिया गया होगा, तो चलो वो लिख लेते हैं। पहला एडवर्टाइजमेंट आ गया, उसके बाद में कमीशन, इसका टोटल आप मार लीजिए। एंड फाइनेंस एक्सपेंस, अगेन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि जितना मैं आपको फॉर्मेट बताऊँ उतना बेटर है। आप ऊपर देखो, कैश डिस्काउंट, बैंक चार्जेस, अब नॉर्मल बैड डेट, नहीं इसका तो हमको कुछ मिला ही नहीं, तो क्यों टेंशन लेते हो, आप इसको ब्लैंक रख लो, आपको टोटल आ जाएगा। टोटल क्या है, A + B + C। ये 3,70,000 को ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करना, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आएगा। बिफोर इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट को आपको क्या करना है, माइनस, बट देन इंटरेस्ट का कोई खर्चा नहीं दिया था, इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन नहीं था, तो वही आंसर आपको आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। ओके, इसके बाद मेरे ऊपर चले जाना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये क्या था, क्वेश्चन में दोनों था, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीव नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो एक को प्लस करते हैं, दूसरे को माइनस करते हैं और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो
लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 20,000 माइनस तो 12 लाख, और इंटरेस्ट रिसीव्ड जो मे बी इन्वेस्टमेंट पे होगा 12,40,000 एनपीबीटी। इसके बाद किया ये देखो ना, आफ्टर एनपीबीटी क्या है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन तो हमेशा देखना है। सेकेंड एडजस्टमेंट 3 लाख, तो चलो वो 3 लाख का फर्स्ट इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का फर्स्ट इफेक्ट। आफ्टर दैट यू गेट एनपी80। फिर लास्ट ईयर का प्रॉफिट विच इज रिटेन्ड अर्निंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस, वेयर इज इट? देखो क्वेश्चन में है पीएनएल अकाउंट 1,20,000 लास्ट ईयर का प्रॉफिट। चलो वो भी कर लिया जी, ऐड कर लिया। टोटल प्रॉफिट 10,60,000। इसमें से अप्रोप्रिएशन आइदर यू डू प्रपोज डिविडेंड और यू डू ट्रांसफर टू रिजर्व। देयर वाज इंटरिम डिविडेंड, साल के बीच में जो देते हैं ना 50,000, माइनस कर लो, आपको आएगा रिटेन्ड अर्निंग क्लोजिंग बैलेंस। वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज सम, क्या 10,10,000। क्या करो इसका, अचार डालो? नहीं जी, इसको लेके बैलेंस शीट के अचार में डालो। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कि ये नेट प्रॉफिट है और ये आप यहां से पिकअप करोगे और अगले पेज पर या जहाँ पे भी आप बैलेंस शीट बना रहे हो वहां पे आप इसको ट्रांसफर करोगे। तो फर्स्ट टाइम यहां का आंसर हम अगले रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर करने वाले हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, ये डन, क्योंकि ये था रेवेन्यू स्टेटमेंट। ये सब बाकी है क्योंकि ये कहाँ पे है, बैलेंस शीट। तो अभी अगली पेज पर ये एक ही प्रॉब्लम है, दैट इज व्हाई दिस इज डिफरेंट। अगली पेज पर क्या आएगा, पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, सबसे पहला मुद्दा। ओके, बाकी मैंने थोड़ा डेकोरेशन कर लिया था ताकि थोड़ा आपको एक फोरसाइट रहे। हाँ, 11 लाख प्रेफरेंस नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस में इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, देयर इज जनरल रिजर्व, इधर ही है सामने 1 लाख, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली नॉट द क्वेश्चन बट द पीएनएल अकाउंट में ये 10 लाख 10 है, जो पीएनएल का क्लोजिंग बैलेंस है, जो रिजर्व है, विच नॉर्मली आपको नेट प्रॉफिट आता है ना, आप उसको बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करते हो। तो द कॉन्सेप्ट एंड द थिंकिंग इज द सेम। ओके, तो जनरल रिजर्व पहले आ गया और पीएनएल का क्लोजिंग बैलेंस, नॉट ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग। तो ये हमको टोटल देता है रिजर्व एंड सरप्लस का 11,10,000। मिसलिनियस एक्सपेंडिचर करके कुछ हमारे पास नहीं था, तो A + B - C विच इज शेयर होल्डर्स फंड्स, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ नहीं है तो उसका टेंशन ना ले। 22,10,000 एंड इन दिस सम सरप्राइजिंगली कोई डिबेंचर, कोई बैंक लोन, कोई बोरोड फंड नहीं था, तो फिर टोटल फंड रेज्ड 22,10,000 एंड इन सम टाइम यहां पर टोटल फंड एम्प्लॉयड विल ऑल्सो बी द सेम। लेट्स सी। ओके, नाउ इन टेंजिबल एसेट क्या है, देखो भाई एकदम ऊपर देखोगे तो प्लांट एंड मशीनरी है, उसका डेप्रीसिएशन करना। फिर आएगा फर्नीचर, उसका डेप्रीसिएशन करना। तो प्लांट एंड मशीनरी का तो 20% था और फर्नीचर का 10%। दोनों का हमने फर्स्ट इफेक्ट दे दिया है, सेकेंड इफेक्ट हमको देना है। सो व्हाट यू सी बिसाइड्स मी इज द सेकेंड इफेक्ट। ओके, तो ये सेकेंड इफेक्ट हो गया फॉर the depreciation of plant and machinery, outside answer, and then furniture का second effect outside answer. okay, obviously ये speed पे नहीं होना चाहिए। okay, YouTube पे होता है ना 1.5x 2x speed, जल्दी जल्दी भागता है, तो मतलब मैं भी थोड़ी जल्दी भगा रहा हूँ, बट एंड ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ that you solve this on your own and not solve it with me। ओके, क्योंकि खुद से सॉल्व करोगे तो गाड़ी कहाँ पर अटकनी है, और एक्सप्लेनेशन के लिए ये वीडियो तो ऑब्वियसली है। हाँ, ये आपका टोटल है टेंजिबल का, बट इंटेंजिबल गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क नहीं है, तो फिर फिक्स्ड एसेट भी ये सेम ही आपको आएगा 11,40,000। देन इन द क्वेश्चन राइट अबाउट में इन्वेस्टमेंट दिए है लॉन्ग टर्म 5 लाख, वो लिख लो। एंड सबसे कंफ्यूजिंग क्या, वर्किंग कैपिटल, उसमें करंट एसेट, उसमें क्विक, नॉन क्विक। ओके, देखो क्विक में अगर आप थोड़ा नजर मार लो, ऊपर आपको डेटर मिलेगा,
थोड़ा नीचे आपको कैश मिलेगा, बिल रिसीवेबल मिलेगा। ये 3 आपको क्विक करंट एसेट देगी। क्विक करंट एसेट का मतलब क्या है? जो जल्दी जल्दी पैसे देता है। और बाद में आपको क्लोजिंग स्टॉक याद रखना है, उसका सेकेंड इफेक्ट। सो याद तो बहुत चीज़ें रखनी है, कुछ आपको क्वेश्चन से और कुछ आपको यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट। तो वेन एवर यू गेट अ फाइनल अकाउंट स्टाइल क्वेश्चन, तो थोड़ा केयरफुल रहना और उसके लिए थोड़ा स्लो जाना, ओके? क्योंकि फास्ट जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप गाड़ी पे बैठे हो ना, जिस जगह पर जा रहे हो, आपका डेस्टिनेशन वो इम्पोर्टेंट है, वहाँ तक पहुँचना है, भले ही थोड़ा स्लो हम पहुँच जाए। ये 3 आपको देता है टोटल, कौन सा? क्विक एसेट का। बट इसमें आपको इन्वेंटरी कहो या क्लोजिंग स्टॉक कहो, उसका सेकेंड इफेक्ट आपको करना है, तो वो मैंने ऐड कर लिया। सेकेंड इफेक्ट, पहले हमने डिप्रीसिएशन ऑफ मशीन का सेकेंड इफेक्ट, डिप्रीसिएशन ऑफ फर्नीचर का सेकेंड इफेक्ट, अभी डिप्रीसिएशन नहीं, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट। 3 लाख हमने ऐड किया, टोटल करंट एसेट आ गया। अभी हमको 17,20,000। करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है? ओके, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में जो टाइम आप स्पेंड करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड हियर, देन आगे ना, आई बी वेरी फ्रैंक टू यू, आप सिर्फ आपके यूट्यूब का डेटा वेस्ट कर रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट अगर क्वेश्चन में जो मार्किंग की है वो समझ में आया, तो ऑब्वियसली आपको पूरा सोल्यूशन पता है। यहाँ पे आपको ऊपर दिखेगा करंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर, और फिर ये जो है ना प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, दूसरा वाला। बट ये कहाँ पे है? ये तो एक्चुअली ये जो लिस्ट है ना, देखिए QCL, इसके अंदर आता है। तो देर आर 2 करंट लाइबिलिटीज, फर्स्ट इज क्रेडिटर, देन प्रोविजन फॉर टैक्स। ये दोनों है तो क्विक करंट लाइबिलिटी। इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट अगर कभी आता है तो वो नॉन क्विक होता है, बट देन अपने क्वेश्चन में है ही नहीं। तो फिर ये जो टोटल है ना 11,50,000, ये एक्चुअली टोटल करंट लाइबिलिटी है। ये है क्विक करंट लाइबिलिटी एज वेल एज टोटल करंट लाइबिलिटी। चलो भाई टोटल कर लेते हैं। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज वर्किंग कैपिटल 5,70,000 एंड टोटल फंड एम्प्लॉयड 1 + 2 + 3। 1 किधर है? देखो इधर है, 11,40,000। हियर लेट मी शो यू। 1 2 5 lakh, 3 5,70,000। सो हाउ मच शुड द टोटल कम? ये मेरे सिर पे एग्जैक्टली आने वाला है 22,10,000। इफ यू गेट अ क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे आपको फाइनल अकाउंट्स करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इत्मीनान से टाइम ले लेना, फॉर्मेट सामने रखना। ऑब्वियसली मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा, ओके? फॉर्मेट सामने रखना। इवन दो एग्जाम में करोगे ना, शॉर्टकट में फॉर्मेट हमेशा लिख लो, लास्ट पेज पे लिख लो, सो दैट यू लुक, ये सेल्स है, ये COGS है, ये ऑपरेटिंग है, ऑफिस है, ये सेलिंग है, ये NPBT, NPAT, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन होता है। एंड अच्छे तरीके से मार्किंग कर लो, और वो मार्किंग करने के बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये एंड में जाके टैली होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपके पल्ले पड़ा, आपके दिमाग में फिट हुआ और एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया। तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कर लीजिए। अगर आपके पास में कोई सजेशन सुझाव है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर नए आए हो तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की उस घंटी को दबा दें। पुराने हो तो हमारे लेक्चर को आप दूसरों के साथ में शेयर ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल का उपयोग करें क्योंकि वहाँ पर सारे PDF जो है उसको शेयर किए जाते हैं, और अपने दोस्तों को भी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। जब तक हम दोबारा ना मिलें, कभी कभी ना ज़बान फिसल जाता है। ओके, अपना, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।